Seeing, guys? Yes, sir. Please read the problem. In the given figure, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. E and F are the midpoints of AD and BC respectively. Hmm. DF and EB are produced to meet at G. Also, AC and EF intersect at O. Show that EO is parallel to AB. OA is equal to OC. Right. Okay. So, Anika, what do you think? What is given? So in this we have the things that ABCD is a trapezium and which sides are parallel to which sides, and they're also telling us about a diagonal. Okay. So, in this question, they have told us that ABCD trapezium हो जाएगा, AB parallel हो जाएगा, E and F are the midpoint हो जाएगा, ठीक है. DF और AB are produced to G हो जाएगा. Also, AC and EF intersect AC and EF. Okay. Intersects कर रहा है, ठीक है. Show that EO is parallel to AB. EO is parallel to AB. Okay. So बहुत simple है ये तो. Can you hear me? Yes, sir. Okay, I will just let you know how to do this. Okay. First of all, guys, एक चीज देखो. ABCD is a trapezium, right? Yes. I'm writing down the solution here. ABCD is a trapezium. तो हम लिख सकते हैं AB is parallel to DC. Can we say that? Yes, we can. Anika, we can write down, right? Yes, sir. Now, if you see here, this, and this. Can you see that? Can you see that? Yes. Yes, sir. Okay. If you see here, E is the midpoint. E is what? E is a midpoint of triangle ADC. It is given to me. Correct? Yes, sir. Okay. और कुछ डेटा तो गिवन है? और कोई डेटा गिवन है? आपके सर ने इतना सारा डेटा क्यों दिया? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. Why have they given this much? So they can do anything. इतना डेटा देने की जरूरत तो है नहीं इसमें. चलो देखते हैं what it is given or not. Let's see that. तो एक तो ये हो गया. Okay. And we can also see that in another triangle, we can see that this one. Can you see this triangle? Yes. In this triangle, if I see E is a midpoint of, एक मिनट, E is a midpoint of, मैं यहाँ mistake कर गया हूँ. E is a midpoint of AD in triangle ADC. Okay. And F is a midpoint. F is a midpoint of BC in triangle CAB. Okay. ये given है हमारे पास. Right. Can you see that? Yes, sir. अच्छा. यहाँ पे लिख रखा है AC and EF intersects at O. Okay. So they are intersecting each other. बहुत बढ़िया. ठीक है. So हम एक काम करते हैं. इंटरसेक्टिंग बोल दिया है एंड इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. Why they have given so much data? DNF, DF, AB, ये सब. Why this data is given? चलो लेट मी सी. क्या मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ इसका.
Give me a moment. Okay. Sir, I cannot find more than 3 videos of quadrilaterals in the your YouTube I think channel. upload नहीं हुआ होगा. So need to be. I thought I couldn't find it because like part 1, part 2 and part 3 I have watched, but the other parts I'm not able to find. I've looked from all the names, but it's not. ठीक है, कोई बात नहीं. No issue. Give me a second. I'm just looking into it. कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, so according to the rule it will become the parallel. ये हो जाना चाहिए, right? अगर ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, PQ is parallel to AE. एक मिनट में सोचने दो, ये सर ने आपके लिए क्या क्या दे रखा है. Oh yes, I got it. Give me a moment, guys. Guys, can you see this? Yes, sir. One more thing, मैं Yes, यहाँ एक sir. चीज और लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. Are you able to see my blue color? Are you able to see my blue color triangle now? Yes, sir. In this blue color triangle, E and F are the midpoint. In triangle DAG, E and F are midpoint. E and F are what? अच्छा, लेकिन मुझे पहले प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि F is the midpoint of DG. Oh my God, give me a second. So complication they have given. एक बार रुक जाइए, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप लोग? अब देखो हम स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे, मैं बता देता हूँ स्ट्रैटेजी. पहले हम ये तो ई पॉइंट मिड पॉइंट दे रखा है, राइट? अगर हम इस डीजी लाइन को भी मिड पॉइंट पकड़ लें, एफ इज द मिड पॉइंट, सो वी कैन से ई एफ इज पैरेलल टू ए जी, बोल सकते हैं ना हम लोग. सो ए एफ इज पैरेलल टू ए जी, सो ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी, और ये ए बी सी डी के पैरेलल है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, राइट? तीनों क्या हो जाएगा? दूसरे के पैरेलल. Yes, sir. So in that case, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, तो EO will be also parallel to this. ये स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि पहले तो F is the midpoint of DG लाइन, वो प्रूव करना पड़ेगा. वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं सब कुछ रब कर दे रहा हूं. उसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट. तब DF is equals to FG लिख देंगे, तो हमारा F is the midpoint हो जाएगा. Understand, guys? Understand? Yes, sir. So पहले हम ट्रायंगल लेते हैं FCD and triangle Why is F. it so complicated? This is complicated. ये आपका वो है वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 13, नोट डाउन कर लो. वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 13 देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? So now look here how to make it. So CFD is equals to BFG by vertically opposite angle. By vertically opposite angle. उसके बाद F is the midpoint of, ये बोल रखा ना, F is the midpoint of BC. तो यहां से हम लिख सकते हैं CF is equals to BF. Can we say that? ये वाला equal, and this line and this line are parallel, so we can say DCF is equal to GBF by alternate interior angle. देखो ये वाला मैंने कितनी बार प्रूफ किया है इस दो ट्रायंगल्स को? Yes, sir. मेनी टाइम्स, और सब बार ये एक ही रूल लगा के प्रूफ किया है, राइट? Yes, सना, sir. डू यू Yes, क्लियर sir. दैट? Yes, sir. ऑलवेज एक ही रूल मैंने लगाया है, वर्टिकली अपोजिट, मिड पॉइंट से साइड इक्वल कर लेते हैं,
और फिर हम पैरेलल लाइन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देते हैं, राइट? आपको नहीं दिख रहा, मैं दिखा देता हूं। एक ये वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला साइड और यहाँ पे ये एंगल। क्लियर है अभी? क्लियर है अभी? क्लियर है अभी? So yes. So therefore triangle FCD is congruent to triangle FBG. अब ये congruent हो गया तो we can write therefore DF is equal to FG. क्या लिख सकते हैं हम? DF is equals to FG. So DF is equals to FG. Hence F is a midpoint. F is a midpoint of DG line. Can you see that? Yes, sir. ये पूरा स्टेटमेंट लिखो। पहला ब्लॉक जो गिवन डेटा है, ये मैंने गिवन डेटा लिखा, फिर आप इसको लिखो पूरा नीचे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये बहुत 3-4 पॉइंट्स पे सॉल्व होगा। इट्स नॉट सिंपल क्वेश्चन। Okay, sir. तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर लिया है कि हमारा जो F पॉइंट है, पॉइंट F, that is the midpoint of DG line. Understood guys? Understood? Yes, sir. हाँ, इसको Yes, जल्दी sir. से नोट करो। स्कूल वाले टीचर ने एक सेकंड, वर्किंग? Yes, sir. Done, sir. ओके। So the question is very complicated, but the solution is only 5 lines, hardly. नहीं, अभी सॉल्यूशन कहाँ हुआ है? Oh, सॉल्यूशन अभी हमने कहाँ किया? हमने पैरेलल कहाँ लिखा है अभी? so यहाँ तक क्लियर है? yes, sir. Okay. Yes, Now, I will take this figure. I will move to the next page. अभी हमको इसमें जो है ये मिल गया इस ट्रायंगल में। Now we will take what triangle? We will take, अरे यार ये क्यों ऐसे? I will take this, this and this triangle. Can you see that? Yeah. उसमें E and F is the midpoint. So let's work out. In triangle DAG, E and F are midpoint of AD and DG.
अब ये मिड पॉइंट हो गए इस ट्रायंगल के, राइट? सो कैन वी से दैट EF is parallel to AG? Can we say that? Yes. Now we can say that EF is parallel to AG, so EF is parallel to AB बोल सकते हैं? AB लाइन भी तो उसी में है. Yes, sir. And AB is parallel to whom? AB is parallel to CD. कह सकते हैं हम लोग? Yes. या नहीं? So now we can also say, अब ये देखो EF पूरी की पूरी EF लाइन जो है वो AB के पैरेलल हो गई, पूरा का पूरा EF क्या हो गया? पैरेलल हो गया, राइट? तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि EO जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा। जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा, राइट? Hence proved। ये पहला पार्ट हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मेक अ नोट। ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, ए वाला पोर्शन, राइट? ए वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है, सो मेक अ नोट ऑफ इट फर्स्ट। Okay, sir. Sir, done. Okay. Moving. Sir, I'm done as well. ओके, ये हो गया गाइस, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ओके, चलिए हम इसको रब कर देते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है इसमें कि OA इज इक्वल्स टू OC, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल हो जाएगा, राइट? हमको अब ये क्या करना है? प्रूव करना है। सिंपल सी बात यहां पर देखो जरा, अभी अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि EU इज पैरेलल टू AB। क्या प्रूव किया है? EU is parallel to AB. So guys, can you take the triangle ADC? In the triangle ADC, E is a midpoint. E is a midpoint of AD and EO is parallel to AB and AB is parallel to CD। बोल सकते हैं हम या नहीं बोल सकते? बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अगर आप लोग देखो ट्रायंगल को, आई एम टॉकिंग द ट्रायंगल दिस वन, कैन यू सी दैट? Yes. इसमें ये मिड पॉइंट मिल गया मुझको, ये मिड पॉइंट मिल गया, और ये वाला लाइन, अच्छा मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो कल मैंने पढ़ाया था ना, जब ऐसा होता है तो O विल बिकम द मिड पॉइंट। कल Yes. बताया था ना रूल, मिड Yes. पॉइंट का उल्टा।
So therefore we can write O is a midpoint of AC line in the triangle ADC. और जब O midpoint हो गया तो OA will be equals to OC. Yes, sir. Hence proved. ये second part हमारा prove हो गया. Make a note of it first. Sir. Okay. Yes, sir. Give me a second. Just a moment. Guys, I'm giving you the question here. आप लोग जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके, गिविंग यू दिस पार्ट. ये मैंने बताया हुआ है आप लोग को ऑलरेडी. एक बार यू कैन गो फॉर इट. गिव मी अ मोमेंट. सॉल्व. Sir, this one is easy. Yes, sir, we have done this. Yes, Anika and Sana, so please do it. Done है तो please solve तो करो. I just Sir, want to the see. only thing in this question is that if B is 90, then we can say that if this Write down and show me. Both of you, please write down and show me. We're done.
Yeah, Anika, please wait. Anika, please wait. Okay, sir. So that was me. Sir. Yes, Anika, can you hear me? Yes, sir. Yeah, sorry, actually urgent call थी. Okay, don't worry, we will extend Yes, our sir. class and हाँ, इसमें क्या दिक्कत आई है? So बन कोई गया? दिक्कत नहीं, I've done it. तो मुझे दिखाओ. So should I tell you the answer? नहीं, रिटर्न में चाहिए. व्हाट्सएप करो. Okay, sir. To me. Anika and Sana, both of you please WhatsApp the answer. क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना आपको, बोलने से तो चलेगा नहीं. Sir, Show I me. can't. My mom has taken her phone. Is it possible to take the phone right now? No, sir. Sir, I can tell you what I did. ठीक है, पहले सना भेजो, I want to see yours. फिर भी डिस्कस करेंगे हम. Sir, just a second. My phone was on 0. It's taking 2 minutes to load. It was switched off. हाँ, स्विच ऑफ हो गया. Matlab, sir, it was on 0 na, so that is why I was using WhatsApp web, but I can't send the picture through that. Do it fast. Send me. So should I tell you right now? I will send it in 2-3 minutes when it opens. ठीक है. Okay. Tell me. Yes, so we know that ABC is 90 degrees. And if we consider a triangle ABC, then the total sum of all angles is 180. 180. So, So B is 90. So A plus angle BAC plus angle BCA is plus 90 is equal to 180. So we And sir, consider if we this consider 2x. it as an isosceles triangle, that means the Which angle one? Which one isosceles triangle हो जा रहा है? ABC can, if we consider it, कैसे Then isosceles कैसे हो जा रहा So है? we don't need to consider it as isosceles triangle. We can just take 2x. कैसे 2x कैसे ले लोगे आप यहाँ पे? so we can consider it isosceles because sir, कैसे? Where is written isosceles? So we know that BQ. So P. If we consider PQ, then BQ is BQ is equal to PB also. क्या 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 फिर से बोलो? so the thing is PQ will that be एक मिनट रुको, एक मिनट. कोई कॉन्ग्रुएंसी की है आपने इस ट्रायंगल, इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी कुछ कॉन्सेप्ट लगाया है? yes, sir. It will be Yes, sir. BQ is similar is like equal to PB. BQ PB के बराबर है ही नहीं.
AP के बराबर दे रखा है, चेक इट। कैसे बोल दोगे वो Thing स्टेटमेंट? is, sorry, but DQ AQB is a एक मिनट, मुझे जानना ये है आपने कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी किया है, पहले ये बताओ। triangle APB and triangle CQB. yeah एक मिनट, APB CBQ एंड or CQB. CQB किया है तो गलत किया है फिर। अगर CQB किया है तो गलत किया है। इट विल बी BQC। इट विल बी व्हाट? BQC। फिर म्यूट हो गए, म्यूट नहीं हो रहा Sorry, है। sir. I thought like I was telling you the I was just telling you the triangle. This is APB। So won't it be C? नहीं, C नहीं होगा। बिकॉज C इसलिए नहीं होगा क्योंकि AP BQ के इक्वल है, तो हमें Okay, AP के so जगह it will AP के be जगह BQC. हमें BQ BQC. लिखना पड़ेगा। देखो मैंने AP की जगह BQ लिखा है, कैन यू सी दैट? Yes, sir. अब जब So BQ we लिखा तो know ये that. C इधर चला जाएगा, कैन यू सी दिस? Yes, sir. I understand. अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? बिकॉज व्हेन आई विल प्रूव द कॉन्ग्रुएंट, सो दिस साइड एंड दिस साइड विल बिकम इक्वल, तब आप इसको ABC को आइसोसेलेस बोल सकते हो। डू यू क्लियर Yes, दैट? sir. That's what I was going to do. हाँ, डायरेक्टली आइसोसेलेस Yes, मान sir, लिया, बना same. दिया, नहीं चलेगा। No, sir, Yes, but sir. I was going to do that. तो चलो अब इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो मेरे साथ। तो इनको Right. कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ So करने के लिए AP AP, is equal to BQ given. ठीक है। दूसरा, ये दोनों दूसरा- 90-90 है बिकॉज ऑफ स्क्वायर्स। Yes, sir. So angle APB APB is equals is to equal angle to BQR. BQC BQC, sorry. is equals to 90। तीसरा, The BB is ये equal to क्वेश्चन मैंने करवाया था ना गाइस, याद होगा आप लोग को। इस पे दो क्वेश्चंस sir, I थे, remember. दो क्वेश्चंस थे, राइट? और देखो टीचर भी sir. वैसे ही कुछ पूछा हुआ है। अच्छा, दूसरा, तीसरा बोलो, तीसरा क्या करोगे? So we can do PB is equal to ऑब्वियसली इसमें देखो ना, ये UC लिखा हुआ sin है। sine. वेट, अब आप हमें पहले PB और CQ इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, वी नो वेरी वेल ऑल स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है। कैन यू हियर मी? Yes, sir. ऑल साइड्स इक्वल हो जाता है, राइट? नाउ वी नो वेरी वेल दैट BQ इज इक्वल्स टू CR दे रखा है, चेक करो, राइट? सब्ट्रैक्ट कर दो। सो PQ में से BQ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये PB बन जाएगा, राइट? और QR में से CR सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये QC बन जाएगा। सो नाउ PB इज इक्वल्स टू QC आ गया। सो कैन वी राइट दैट हियर? Yes, sir. Anika, Sana, do you understand? So therefore now APB is congruent to BQC। अब जब congruent हो गया तो हम कह सकते हैं AB is equals to BC। क्या बोल सकते हैं हम लोग? AB is equals to BC by CPCT। Therefore triangle BAC Sir, I is have sent you my solution, but my mistake was considering the wrong, like naming the triangle wrong. नेमिंग द ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस। अब ये आइसोसेलेस बना है। अब जो ये ब्लू ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये अब जाकर आइसोसेलेस बना। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, सो sir. So नाउ if isosceles, now we can say that 2x plus 90 is equal to BAC 180. BAC plus 90 plus BCA is equals to 180। तो BAC और BCA इक्वल हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes. So BAC is so equals that's to 45 and 45. 90। हाँ, ये 45 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे Yes. सॉल्व होगा ये, डायरेक्टली नहीं क्या मान लिए सर इसको ऐसे मान लिए, नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा ना हमें। और आप लोग यही सब गलती करोगे, मुझे पता है आप लोग यही सब गलतियां करने वाले हो। इन ट्रायंगल ABC 90 APB BC 90 PB। तो अनिक सना, एक सेकंड रुको, ये जो, हाँ, गिव मी अ मोमेंट, कैन यू हियर मी? दिस इज द आंसर ऑफ सना। ओके, सना आपने ABC पहले ले लिया, ABC में B90 है, चलो ठीक है। फिर आपने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। AP को आपने BQ बोला, AP को आपने BQ बोला, चलो ये भी ठीक मान लिया। ये एंगल भी 90, ये कहां से आया आपको? हाँ जी, ये बताना पड़ेगा ना कहां से आया मुझे। देखो मैंने बताया है ना यहाँ पे,
आई हैव डन दिस पार्ट हियर, राइट? Yeah. आपने डायरेक्टली लिख दिया तो टीचर बोलेगा ना जी किधर से आया, आसमान से आया, ये कहां से आ गया? चलो उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, बाद बाकी प्रोसेस इज गुड, बट वहां पे टीचर आपको मार्क्स यही कट कर देगा। गॉट इट? गेट इट? Yes, sir. सना, डू यू क्लियर? अनिका, अनिका डू यू Yes, sir. क्लियर? Here. ओके, चलो, सो आपका ये हो गया, ठीक है, वी आर मूविंग अहेड। एक काम करो, सना और अनिका, आपको मिला हुआ है ना आप लोग के पास क्वाड्रिलेटरल का, टीचर ने जो भेज रखा है, Yes, sir. उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9, 10 करा दिया, 11 करा दिया, 12, जितने क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं ना, आप सबको मैंने कराया हुआ है। इफ यू विल सी द पीडीएफ, इफ यू विल सी द नोट्स, यू विल फाइंड द आंसर्स। अंडरस्टैंड? आर.एस. अग्रवाल सर्च करो, यू विल गेट ऑल क्वेश्चंस का आंसर यहाँ मिलेगा। डू यू क्लियर? Yes, sir. मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो मैंने नहीं करवाया है, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का जो सेकंड वर्कशीट है, क्वाड्रिलेटरल का जो सेकंड वर्कशीट है, उसमें आपको नीचे से मैंने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट ईडी बाइसेक्ट्स बीसी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आपको हो चुका है, ओके? 4 भी हो चुका है। कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस, 4 भी हो चुका है, एंड आई विल चेक फॉर 1, 2, 3। 1 बहुत आसान है, लेट्स सी फॉर वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके सारे वर्कशीट भी हो गए हैं, आर.एस. अग्रवाल भी करा दिया है, तो प्लीज आप लोग वर्कशीट पर और आर.एस. अग्रवाल पे ध्यान देना। इज इट क्लियर? Yes, sir. जो कहीं ज्यादा पढ़ना नहीं है, अगर आप मेरे पीडीएफ से, कैन यू हियर मी? Yes, sir. आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ के चले जाओ क्वाड्रिलेटरल के लिए, दैट इज एनफ। लेकिन ये वाली जैसे सना आपने मिस्टेक की है, ऐसे मिस्टेक करोगे तो नहीं चलेगा। डू यू क्लियर? Yes. अनिका, डू यू क्लियर दैट? Yes, जो sir. लिखाया है, जो मैंने लिखाया है, वो स्टेप वाइज लिखा होना चाहिए, नॉट अ सिंगल पार्ट शुड बी मिस्ड, क्योंकि मिस होगा तो टीचर 0 दे देगा वहां पे। डू यू क्लियर दैट? अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ो दोनों लोग। In a given figure, ABCD is a parallelogram. क्या दे रखा है? ABCD is a parallelogram in which diagonal AC and BD intersects at O. Correct? A Yes. line segment LM is drawn passing through O. Line segment passing through O. ठीक है, गुड, ये पास भी करेगा। So we have to prove that LO is equals to OM. हमको क्या प्रूव करना है? LO is equals to OM प्रूफ करना है। ओके जी, कोई बात नहीं, तो LO is equals to OM प्रूफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा? लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी। ओके, हो गया। आप लोगों को मालूम चला कैसे प्रूफ होगा? Guys, can you hear me? Midpoint theorem. Yes, sir. नो मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मिड पॉइंट बताना चाहिए ना इसको। इसने हमें मिड पॉइंट बताया ही नहीं है, और मिड पॉइंट से तो हम इस डायरेक्शन में कर पाएंगे ना, ये पूछ रहा है इसके बराबर ये। तो गाइस देखो कैसे करना है, मैं बता रहा The हूँ। diagonals. वेट, डायगोनल्स बात सही है। आर यू एबल टू सी दिस ट्राइंगल and this triangle? Can you see that? Can you see Yes, this? sir. इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या कर देंगे हम? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। बट कॉन्ग्रुएंट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी हमें। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जी? तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो लिखो मेरे साथ यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? ये वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन है गाइस, ठीक है? सॉल्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा
ABCD is a parallelogram. ऐसे लिखते हैं ना parallelogram? Sana, Anika, any doubt? No doubt. No, sir. Then AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Can we say that? Yeah. Can we say that? अच्छा, diagonals bisect each other. मैंने बताया था ना, diagonals bisect each other. So can we say that parallelogram में OA is equals to OC and OD is equals to OB? कोई परेशानी यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? हाँ ना, कुछ तो बताओ. Okay. Now, can we consider the triangle COM and नहीं, पहले COM नहीं लेते, पहले ले लेंगे हम AOL. क्या ले लेंगे जी हम? ये देखो, I am taking this triangle. Can you see that? Can you see that? Yes, sir. AOL और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम ये वाला. That is known as COM. अब AOL और COM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो. चलो, तो मेरे साथ जब वर्कआउट करोगे तो ध्यान दो, सबसे पहली चीज वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा. कैन वी से दैट? Yes, sir, we can. We can say COM by vertical opposite angle. Vertical opposite angle. सना, कोई डाउट है? सना, No, sir, no doubt. AO will be equal to OC. अभी भी प्रूफ किया ना हमने. Yes, sir. अच्छा, तीसरा जब साइड लिया है तो मुझे एंगल लेना चाहिए इसके बाद. करेक्ट? Anika and Sana, what do you think about this angle? ये दोनों parallel lines. This angle would be They're equal to, equal because it's a transversal. yes. So we can say what? We can say OAL is equal to OCM by alternate interior angle. Sana, do you clear? कैसे हुआ ये? Yes, sir, got it. AD है और ये इधर BC है, राइट? तो ये दोनों AD और BC क्या है? पैरेलल लाइन है, राइट? और तो AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा उस केस में. सो इट विल बी इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देयरफॉर triangle AOL is congruent to triangle COM by ASA criteria. किस क्राइटेरिया से प्रूव हो गया ये जी? ASA criteria. तो क्या हम कह सकते हैं कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड? बोल Yeah. सकते हैं? Yes. अनिका, कैन वी से दैट? Yes, sir. तो LO is equals to OM by CPCT, hence proved. बन गया? Yes, sir. चलो जल्दी से नोट डाउन करो. नहीं, नोट मत करो, रहने दो. समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, sir, आ गया. मैं सभी पीडीएफ आज अभी क्लास खत्म होने के बाद सारी जितनी भी आपकी पीडीएफ है वो सभी मैं भेजूंगा. योर जॉब इज, आज संडे है ना, Yes, sir. बैठ के सारी पीडीएफ बनाओगे क्वाड्रिलेटरल्स की. डू यू क्लियर दैट? Yes, sir. अनिका, डू यू क्लियर? अनिका, डू यू क्लियर? So can you Yes, also upload sir. videos? वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी. Thank you, sir. बट आप लोग वीडियोस देखते कहाँ हो? Sir, I watch. मैंने सर्च किया है, वीडियोस नहीं देखते हो आप लोग? नहीं, so I watched them. ओके, चलो कोई नहीं. ये है वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2. वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 2. ओके, कैन यू सी? Yes. वर्कशीट 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ. अनिका, प्लीज रीड द क्वेश्चन. So the question is, in the given figure, ABCD is a square, M is the midpoint of AB, and PQ is parallel to CM, is perpendicular to CM. ठीक है. Prove that CP is equal to CQ. क्या बोला है? CP is equals to CQ.
CP और CQ, अच्छा ओके, ये वाली लाइन इसके इक्वल प्रूफ करनी है, ओके। और क्या डेटा है जी, ये 90 डिग्री है, ओके बहुत बढ़िया, ओके अच्छी, ओहो दैट्स ग्रेट। मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, आई विल नॉट प्रूफ। कौन करेगा प्रूफ? सना, सना Yes, sir. विल यू प्रूव इट? I can try. ट्राई क्या, प्रूफ करना पड़ेगा जी। Oh. एक बात बताओ, ये जो मैंने रेड कलर से जो लाइन ड्रॉ की है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको दिख रहा है ये दो ट्रायंगल आपको चाहिए? Yes. Anika and Sana, can you see this? Yes, sir. So we know that. Or if we prove the रुको triangle is रुको congruent- रुको 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 गाइस, रुको, ठंड, थोड़ा ठंड रखो। ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तो CP is equals to CQ हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज इसमें हमें PM और MQ यूज करना पड़ेगा। So we क्यों? can take CM as common and we can take CM, हाँ CM कॉमन ले लिया, और क्या कर लोगे? और 90 ले लोगे, या 90 ले लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा? फिर उसके ये बाद- साइड लेना पड़ेगा ना PM और MB। Yeah, but we can consider it as हाँ क्या like कंसीडर करेंगे? CPCT कर। रुको, मतलब पहले ही CPCT कर दोगे? पहले कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ करो। कॉन्ग्रुएंट के लिए मुझे तीन चीज चाहिए, इसमें से क्या तीन चीज लोगे मुझे बताओ? व्हाट 3 थिंग्स यू विल टेक? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रफली लिख रहा हूँ। एक ट्रायंगल ले लिया CMP और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने CM is CMQ। common and the angles are चलो both 90 CM degree कॉमन, and वेट, CQ CM कॉमन ले लिया, उसके बाद एंगल CMP जो है वो एंगल CMQ के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी ले लिया। और बोलो और क्या लेना चाहिए? Tell me. CP, but then it won't make sense. CP तो प्रूफ ही करना है, तो उसको कैसे ले लेंगे हम? हाँ, sorry, right. तो दिया नहीं है ना। और बोलो अनिका, थर्ड थिंग व्हाट शुड आई टेक? So you can take MP and MQ. MP और MP, right, we will take what? Not given. PM is equals to MQ। But if यही, you're proving it रुको तो congruent- सही, ये लेना पड़ेगा हमें सना। Yes, sir, but हमें ऊपर दिया नहीं। दिया नहीं है तो M is the दिया नहीं, midpoint, उन्होंने दिया लिखा- नहीं, वेट, दिया नहीं है तो प्रूफ कर सकते हैं ना। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें अब इसको जरूरत है इक्वल लिखने की। Yes, तो sir, that's equal what लिखो। I'm saying कि M ऊपर दिया हुआ is the midpoint, so we can use that too. नहीं, M से ही नहीं हो जाएगा। हमें सबसे पहले अगर आप फिगर देखो तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, छोटे से छोटे नन्हे मुन्ने, कैन यू सी दैट? Yes. इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। व्हाट इट? Yes, so we know AM is equal to MB because M is the midpoint. करेक्ट, वर्टिकली अपोजिट, और Yeah. ये एंगल 90, ये एंगल 90, So AAS. तो एंगल नहीं, AS कैसे? ASA, एंगल साइड, ये That's साइड right, लोगे ना, ASA. Yeah, ASA. ASA से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। Yes. कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम PM is equals to MQ लिख सकते हैं उस केस में, राइट? Yes, सो CPC. पहले चलो लिखो इसको, मैं लिखवा रहा हूँ आंसर, डोंट वरी, मैं सारे आंसर लिखूंगा। देखो मैं टाइम इसलिए ले रहा बिकॉज आई एम राइटिंग ऑल आंसर्स हियर। सो नाउ ये हो जाएगा QPM लिया ना मैंने, तो QBM लेना पड़ेगा मुझे इधर। नाउ सबसे पहले लेंगे हम PMA। अनिका आप सुन रहे हो मुझे? अनिका? Yeah. हाँ ओके। हमारी क्लास एक्सटेंड होगी गाइस आज, कोई काम तो नहीं है? हेलो, No, कैन यू sir. हेयर मी? 15-20 मिनट्स में एक्सटेंड करूंगा, किसी की कुछ है तो नहीं ना काम अभी टिल 11:30? I might have I to. have to go by 11:15 because Yeah. I have dance. Yeah. डांस क्लास Even I have a orientation at 12, so I have to go and eat like breakfast. So 15 मिनट्स एक्सटेंड कर रहा हूं मैं बिकॉज आई Okay, नीड sir. इट, नहीं तो खत्म नहीं होगा पोर्शन। okay. sir. ओके बैठो अभी। PMA is equals to QMB, राइट? Yeah. उसके बाद हमें AM is equals to MB because midpoint दे रखा है, you can see here, right? उसके बाद लिख सकते हैं PAM is equals to
एंगल QBM because of 90 degree, ये 90 है ना लास्ट में, so therefore Yes, triangle sir. PAM is congruent to triangle QBM. Anika, do you understand? Proof Yes. कर दिया. So we can write down PM is equals to MQ. अब हम इसको देखो मिल गया मुझे, तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर लेंगे CMP एंड CMQ. अब यहां पर ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे जो हम लोग बात कर रहे थे, ये वाले. कैन यू सी दैट? Yes. अब ये ट्रायंगल्स लिया करेंगे हम, समझिए निका? सो आई एम टेकिंग हियर. अब इसमें आप बोलोगे जी CM इज इक्वल्स टू CM, बहुत सही. फिर लिखोगे आप CMP इज इक्वल्स टू एंगल CMQ मेक्स 90 डिग्री. और तीसरा देखो हो जाएगा PM इज इक्वल्स टू MQ. हो जाएगा ये Yeah. PM इज इक्वल्स टू MQ. अच्छा मैंने यहाँ क्राइटेरिया नहीं लिखा ना, ये है क्राइटेरिया हमारा ASA क्राइटेरिया. अच्छा यहाँ पे नाउ देयरफॉर triangle CMP is congruent to triangle CMQ by which criteria? Side angle Side. criteria. अब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं therefore CP is equals to CQ by CPCT. Hence proved. Do you clear that? Yes. चलो नेक्स्ट. ये देखो इस तरीके से सोचते हैं, अंडरस्टैंड? मैं सोचना सिखा रहा हूँ, इतना मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे सोचो. एग्जाम में नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी. और दूसरी चीज, अगर कुछ समझ नहीं आए तो क्वेश्चन लिख लिख के याद कर जाओ. क्लियर है? Yes, sir. मैं इतनी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि आपका यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए. ठीक है, बाद बाकी फाइनल एग्जाम्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं. फाइनल एग्जाम्स आई हैव अनदर स्ट्रेटजी. ठीक है, चलो आगे बढ़े. Yes, sir. ओके. So what should we do for sir? सर्कल्स के लिए आप मेरे पीडीएफ्स पूरे पढ़ो. ठीक है, Yes, sir, और but what practice, additional practice? कोई जरूरत नहीं है. RS अग्रवाल एंड PDF, नथिंग एल्स. Okay. नथिंग एल्स. RS अग्रवाल एंड PDF बस. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका वर्कशीट 2 है. वर्कशीट 1 हो चुका है, वर्कशीट 2 हम कर रहे हैं. वर्कशीट 2 में हमने पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, जो बच गए हैं वो मैं करा रहा हूँ. ठीक है, टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है. 4 5 6 7 8 करा चुका हूँ. आप सर्च करना, यू विल गेट दैट. और ये जो बचे हुए थे ये मैं अभी करा दे रहा हूँ. अनिका प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. Okay, sir. In quadrilateral PQRS, the bisectors of angle R and angle S meet at point T. Show that angle P plus angle Q is equal to 2 of angle RTS. Can you hear me guys? Yes, sir. ओके. मैंने क्वाड्रिलेटरल का कुछ रूल बताया था आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर दैट. इफ यू रिमेम्बर दैट क्वाड्रिलेटरल के कुछ रूल्स थे, कुछ याद है आप लोगों को? हेलो हेलो. Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल्स Yes, के sir. कुछ रूल्स याद है या भूल गए? Yes, sir. क्या रूल्स था क्वाड्रिलेटरल का? आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है. Yes, मैं sir. दिखाता हूँ. Yes, sir. I remember. So, sir, what we'll do is we will consider. ये देखो, Sir, can I tell I know this? ये देखो मैं सब कुछ दिखा देता हूँ. ये क्वेश्चन But करवाया I हुआ है. remember this was done in the very first class. यस, ये बहुत शुरू की क्लासेस में हमने किया था. यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है. देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है.
Can you see Yes, that? sir. Should I tell the answer? Yes. कैसे करोगे बताओ? Yes, Tell sir. me. So what we'll do is we will consider angle 2 is equal to half of angle D, Okay. and angle 1 is equal to half of angle C. Good. And when we do this, so now angle D is equal to 2 अच्छा angle ठीक 2. है. तो angle D is equals to twice of angle Angle 2 and angle C is C is twice equal of to angle 1. twice of angle 1. ठीक है. Now उससे we will do angle C is equal to, okay, that we have done. After that, we add all the angles together. So that Okay. is formed So angle A plus angle B plus angle C plus क्या? angle अरे D. एक मिनट, अनिका आपने क्या बोला? Sorry. Yeah, together they form 360. Yeah, together they Okay. form 360, and then angle B plus angle A, we let it be like that. So And, twice of angle 1 plus Yeah, plus twice of of angle angle 2. 2 is equal to 360. Good. So now since we need to have A and B on left, so we'll take them क्यों together. A B लेफ्ट क्यों लेंगे? A B इधर तो ही छोड़ ऊपर देंगे दिया ना. हुआ है. हाँ ऊपर छोड़ दिया. देंगे और बाद बाकी सबको उठा के राइट में लेके जाओ. Yes, sir. Is equal to So 2. 360 Is minus 360 twice minus of angle twice of 1 angle plus 1 plus angle 2. angle 2. अब देखो सिंपल सी Now, बात है इस ट्रायंगल से. Can you Yeah, see this so triangle? 180 minus angle 2 plus Wait, angle 1. 1 plus 2 plus angle CD makes Yes, 180. and we can also write this as So 180 angle minus 1 angle plus 1. angle 2 is equals to 180 minus CED. लिख Yes, सकते हैं अनिका? we can replace Yes, it. sir. तो यहाँ पे 1 plus 2 की जगह रिप्लेस कर दो. So angle A plus B is equals to 360 360 minus minus 2 2 bracket 180 180 minus minus CED. CD. अगर आप इसको सॉल्व Now we करोगे can multiply 2 with 180 and it will become 360. So 360 will get cut. गुड एंड ये हो जाएगा And प्लस ट्वाइस ऑफ. CD, twice of CD will be the answer. So A plus Good. B is equal to twice of CD. परफेक्ट. देखो मैंने करा रखा है ऑलरेडी. राइट. Yes, sir. सो आपका जो Yes, sir. वर्कशीट है, आपका जो वर्कशीट है, अगर आप उसको चेक करोगे तो वर्कशीट हो, एनसीईआरटी हो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो, सारा Yes, कुछ we कराया can हुआ add है. this, yes. सारा कुछ कराया हुआ है. ठीक है. आपको Yes, क्या sir. क्या करना है? यू नीड टू सिट एंड यू नीड टू गो वन बाय वन. Yes, sir. और जिस तरीके से मैंने लिखा है वैसे ही आप भी लिखोगे. राइट. ये स्ट्रेटेजी, ये क्वेश्चन Alright, सना sir. की बहुत सही है. इट्स वेरी गुड. गुड सना. ठीक है. तो ऐसे ही करो आप लोग. ठीक है. तो मुझे लगता है एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Yes. We can close it right now, but I'm sending you all PDF right now and you can do the practice. Clear, guys? Okay, sir. Sana, do you clear? Yes, sir. Clear. Yes, Chalo. sir. Okay, bye. Bye, Take sir. care. Thank you. Thank you, sir.